Well, good afternoon. Welcome to another edition of Atmanirbhar Bharat. This is Prime Minister Narendra Modi's vision of New India, that helping India becoming self-reliant. We carry a series of programs here every afternoon at 12, where we get you, steps taken by various industries, steps taken by various ministries to help India become self-reliant. Today's topic, as we have been discussing for the last few days, is with regards to farmers' agitation and farmers' agitation against the centre's 3 farm laws that has entered day 14 on Wednesday, amid indications that this impasse between the government and the farm unions is not looking to end anytime soon. Despite continued efforts and initiatives, farmer organizations have failed to understand the government's stand, and the government is ready to discuss all the concerns. As protesting farmers continue to sit on the outskirts of Delhi, occupying various highways leading to the national capital, the 6th round of talks between the centre and the farm leaders, which is scheduled to take place on Wednesday, is postponed, and its fate hangs in balance after informal talks between the Union Home Minister Amit Shah and the farmer leaders, which took place late on Tuesday night, failing to break the deadlock. According to official sources, the 6th round of talks scheduled for today morning have been postponed. So we'll take a look at all that and why the farmers, or why there is a misinformation campaign. That's what we're going to look at over the next 1 hour. I'm Anil Thomas. With me, my co-anchor for the afternoon, Jaya Sena. Jaya, good afternoon. Good afternoon, Anil जी. हाँ, आत्मनिर्भर भारत में आज हम बात करेंगे कि किसानों पर हो रही सियासत की, नए कृषि कानूनों से किसानों को हो रहे फायदे की, और किसानों के बीच फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई की. जी हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ राजनीतिक दल पहले क्या कह रहे थे और कैसे उन्होंने अब लिया है पूरा यू टर्न, और जानेंगे किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम को भी एक बार फिर हम दूर करने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स, जो है इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से. Well, exactly. We've got 3 guests here. 2 have already joined us. Dr. Ashok Dalwai, CEO of the National Rainfed Area Authority and Chairman of the Committee on Doubling the Farmers' Income, joining us this afternoon. Also, we've got Hitesh Shankar joining us, senior journalist, joining us this afternoon. But before we get into the guests, let's just unlock what's exactly happened to date. The centre has reiterated time and again that it is ready to dispel any apprehensions regarding the new Farm Acts. The government has emphasized that the reforms are meant to empower farmers, and MSP and mandis will stay. Let's take a look at this report. The government has maintained willingness to discuss all aspects of the new farm laws with the protesting farmers. Union Minister Prakash Javadekar reiterated that the government stands with farmers and assured that APMC and MSP, the key issues at the heart of the ongoing protests, will remain in place. देश के बहुसंख्यक किसानों ने पहले ही इन कानूनों का स्वागत किया है और आज भी इन कानूनों का स्वागत ही कर रहे हैं. पंजाब में मुख्यतः किसानों को लगा कि इससे एपीएमसी समाप्त होगी और एमएसपी की रेजिम समाप्त हुई. मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखो, इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली, आपने धान बेचा, आपको एमएसपी मिली, तो एपीएमसी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी. During the earlier meetings, the government highlighted the key strengths of the new farm bills. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan said the welfare of farmers is a priority for Prime Minister Modi and the reforms are meant to empower farmers across the country. सरकार किसानों के साथ खड़ी है, खुले मन से सरकार बात कर रही है, और पूरे देश में आप देख लीजिए कहां आंदोलन है. मध्य प्रदेश में किसान संतुष्ट है, देश भर में किसान संतुष्ट है, लेकिन एक भी किसान अगर असंतुष्ट है तो हमारा मत है कि उससे चर्चा होनी चाहिए. अगर कोई भ्रम है तो वो भ्रम दूर किया जाना चाहिए. सिंधु बॉर्डर पर भी जो हमारे किसान भाई बैठे वो हमारे अपने हैं, उनके लिए दिल के द्वार भी खुले, चर्चा के द्वार भी खुले. Shivraj Singh Chauhan attacked the opposition for misleading farmers. He blamed the Congress and other parties for taking a U-turn on the agricultural reforms, supporting reforms earlier but opposing them when the Modi government implemented them. प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, एक ने अनेकों बार जब भी अनौपचारिक चर्चा होती थी वो मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की बात करते थे, और सोनिया जी चेयरपर्सन थी. अब जब वही एक्ट माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वो लागू करते हैं तो कांग्रेस यू टर्न ले लेती है 2011 में समर्थन में, और अब विरोध में. ममता जी घबराई हुई हैं, सियासी जमीन खिसक रही है,
भाजपा का मुकाबला मैदान में कर नहीं सकती। ये सस्ती राजनीतिक रोटियां किसान आंदोलन की आड़ में सेंकने का असफल प्रयास है ममता बनर्जी जी का। Government blames the opposition for fueling misinformation among the farmers for narrow political gains. Reacting on the Bharat Bandh, Union Minister Smriti Irani said the opposition tried to create confusion among farmers that the union government will end APMC. क्या वो प्रेसिडेंट को दिखाएंगे अपना ही इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं एपीएमसी की व्यवस्था को भंग कर दो? भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो एपीएमसी का कोई भी कानून भंग करने का कहीं भी बाहर से जोर जोर से डंका नहीं बजाया। और एक किसान, धुले महाराष्ट्र का किसान, 3 लाख रुपए दे नहीं रहे थे लोग, इस बिल के आने के बाद वो एसडीएम स्तर पे जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है और अपने पूरे पैसे पाता है। उस धुले महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की नहीं है। पवार साहब वहां पर सरकार चला रहे हैं। वहां के एक किसान ने स्वयं प्रमाण दिया है कि इस किसान सुधार बिल के माध्यम से उसकी कितनी मदद हुई है। Smriti Irani said that opposition misled the farmers that union government would stop procurement of crops at MSP. Instead, procurement at MSP has been significantly increased. Some 33 lakh farmers have benefited from the recent MSP procurement after the bill was passed in Parliament. विपक्षी दल ये चाहेंगे कि किसान देश का सामर्थ्यवान ना हो और इसीलिए विपक्ष की मंशा तो देश के सामने पहले ही उजागर हो चुकी थी। विपक्षी दलों ने हाहाकार मचाया सितंबर के महीने में कि किसान के समर्थन में ये जो बिल आ रहा है उसके चलते एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सितंबर के महीने से 5 दिसंबर तक देश भर में 33 लाख किसानों से धान की एमएसपी ऑपरेशन के अंतर्गत खरीदारी की गई। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा देश के उन 33 लाख किसानों के खाते में सीधा जमा कराया गया। 336 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इसका मतलब देश का 33 लाख किसान मात्र धान की श्रेणी में आज प्रमाणित कर सकता है कि भारत सरकार ने बड़े ही सुचारू ढंग से एमएसपी का ऑपरेशन पूरा किया। Earlier, some representatives of farmer producer organizations and farmer associations met with Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. They handed over a memorandum to him. They also made some suggestions regarding the new farm laws. They expressed confidence that new agricultural laws were in the interest of farmers. Farmers have been freed from the clutches of middlemen. They said that some amendments can be made to the laws to make them even more effective, but they shouldn't be repealed. DD India. बिल्कुल, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ किसानों की राय भी सुन लेते हैं। आइए। ये जो कृषि बिल हैं, ये किसान के हित के बिल हैं। आज तक जो किसान है, आज तक छला गया इस देश में। किसान को पंगु बना के रखा गया है। इस बिल के द्वारा कृषि में निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ने से किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। निवेश जब बढ़ेगा, आएगा इसमें, तो जो खरीदार हैं, खरीदारों में कंपटीशन होगा। किसान भाइयों को जो विपक्ष वाले विरोधी जो हमारे हैं, जो भड़का रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। और हमारे जो भाई भड़के हुए हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको भड़कने चाहिए, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि विरोधियों ने तो ये करना ही है। तो मैं तो अपने किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो उनके चुंगल में न फंसें, क्योंकि इसमें हम किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज तक किसान जो है बिचौलिए के चंगल में फंसे हुए थे और पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पर किसानों को उनका समर्थन मूल्य, उनका हक, उनकी मेहनत की कमाई उनके खाते में डालने का प्रावधान किया है और इससे किसान को बहुत फायदा होने वाला है। इस बिल से किसान को पूर्ण तरीके से फायदा होना है। किसान आज किसी भी मंडी में कहीं पे जाके, देश भर में कहीं पे भी जाके इस अपने धान को बेच सकता है। और एक समय था जब कांग्रेस पार्टी इस बिल को अमृत तुल्य मानती थी और इस बिल का समर्थन करती थी। चूंकि आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठी है, इसलिए इस बिल का विरोध कर रही है। इससे क्रांतिकारी बदलाव आएंगे कृषि के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी जो इस बिल के अंदर जो किसानों को जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ये उनकी जो उपज है उसका वैल्यू एडिशन का जो रेट होता है, उस रेट तक उनको प्राप्त होगा। और जम्मू कश्मीर का किसान अपनी फसल को कन्याकुमारी तक बेच सकता है, कन्याकुमारी का किसान पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल का गोवा तक। जैसे कि हम छोटे किसान लोग कभी धान को यहाँ लाके बेचा करते थे, तो बीच के
बीच के जो दलाल होते थे, बिचौलिया लोग, इसमें हमको कमीशन देना पड़ता था। और चूंकि हमको रेट जो है रेट हमको वाजिब नहीं मिलता था। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने से हम अपने धान को कहीं भी बेच सकते हैं और कोई भी दलाल की इसमें जरूरत नहीं है। और बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक दलवाई और वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी। हितेश जी, जिस तरह से लगातार ये विरोध चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसमें पूरा कूद चुकी है, सबसे पहले आइए उन्हीं की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, सिर्फ इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि उनके विरोध करना है, क्योंकि ऐसे तमाम सबूत और तथ्य सामने आ चुके हैं कि पहले इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने इन तमाम कानूनों की और सुधारों की वकालत की थी? अगर एक पंक्ति में जया जी, अगर मैं इसे समराइज करने की बात कहूं तो जो किसान नहीं है वो फसल काट रहे हैं। ये अराजकता की फसल है, उपद्रव की फसल है, अलग मुद्दों की बात है। मैं 3 दिन पहले का एक वाकया जरूर साझा करना चाहूंगा। अभी ये कहा गया कि इस मुद्दे को पूरे विश्व में एक समर्थन मिल रहा है, मगर लंदन में जो प्रदर्शन हुआ वहां इसके समर्थन की बजाय नारे लग रहे थे खालिस्तान के। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। बता रही है जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए हितेश जी, बोलिए। तो निश्चित ही ये जो बिल्कुल हितेश जी की आवाज यहाँ हमारे से टूट रही है। बिल्कुल यहाँ पर हम बात बताना चाहेंगे कि लगातार एक मिनट, हितेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हितेश जी आपका अनम्यूट दबा दीजिए क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी ऑडियो म्यूट हो चुकी है। हाँ, बोल सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। निश्चित ही 2019 का अगर हम जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर देखते हैं तो उसमें मैं स्पेसिफिकली 2 पॉइंट्स की बात मुझे बड़े दिलचस्प लगे। 9वें नंबर का मुद्दा है उनका, कांग्रेस विल प्रमोट फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल फार्मर टू एक्सेस इनपुट्स टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। उसी में 11वें नंबर का पॉइंट है, Congress will repeal the Agricultural Produce Market Committee Act and make trade in agricultural produce, including export and interstate trade, free from all restrictions। जब यही बात कांग्रेस खुद कह रही थी तो अब इसमें अंतर क्या है, ये अंतर स्पष्ट करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में कुछ चीजें हुई हैं कि सब लोगों को अपना पेशा बदलने की, उन्नति करने के मौके मिले हैं, मगर किसान के साथ हमेशा ये रहा कि अगली पीढ़ी आती है और खेत 2 भाइयों में बढ़ जाता है, उसकी इनकम नहीं बढ़ती है। और बुवाई क्षेत्र का विस्तार हुआ है, सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि हुई है, भूमि सुधार कानून बदला हुआ है। 90 के दशक में पूरी दुनिया में हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में सुधार हुए। उसके बाद से मुझे लगता है ये ऐसा अहम मोड़ है जिस समय बिचौलियों की लड़ाई राजनेता लड़ रहे हैं और किसानों के नाम पर लड़ रहे हैं। बिचौलिए परेशान है, किसान परेशान नहीं है। क्योंकि एक चीज है कि पहले बेचने वालों में होड़ रहती थी कि कौन बेचेगा और क्या दाम मिलेगा, क्योंकि उससे ही खर्चा चलता है किसान का 3 उपज के बाद, 1 उपज के बाद जब बेचते 3 महीने के बाद। आज स्थिति ये बनने वाली है कि अब खरीदारों में होड़ पैदा होगी, तो जिधर कंपटीशन होगा प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये अब इसीलिए लगता है कि जो बिचौलिए परेशान है, किसान का वेश धर के आए। मैं ये बात इसलिए भी कहता हूं, किसान की बात मैंने हल चलाया है, मैंने सुहागा चलाया है, हमारे खेत हैं, मगर मैं खुद को किसान नहीं कहता क्योंकि प्राइमरीली मेरा काम वो नहीं है। मगर आज इस देश में ऐसे लोग हैं जो गमलों में सब्जियां उगाते हैं, ITR में खुद को किसान बताते हैं, मगर उनका खुद का काम कुछ और है। फैंसी नंबर प्लेट वाले ये जो किसान आए हैं, मुझे नहीं लगता किसान है। वेस्ट यूपी और बाकी जगह मेरी जो बात हुई है किसानों से, किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब, जिसे पंजाब की विधानसभा ने खुद एक प्रस्ताव पारित किया कि मंडी और बाहर के क्षेत्र का जो अंतर था, तो पंजाब को तो पूरा राज्य, पूरा सूबा वो एक मंडी की तरह काम करेगा और उससे बाहर उपज नहीं बेच सकते। जब वहां पर ये उन्होंने अपने हिसाब से मनचाहा एक सुधार कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो उसके बाद पंजाब में दिक्कत पैदा होने का कारण क्या है? ये मुझे लगता है ये बुनियादी चीज है जो सबकी समझ में आ सकती है सरलता से। Okay, Mr. Dalwai, when you look at this particular issue, Hitesh has put the blame very fairly and squarely on political parties here. But what are the amendments that were brought about by the previous government and how different are they in the new farm laws? Because you worked in it
So I exactly want to know what exactly was proposed last time around. This time around, how is it different, or are they one and the same? See, it's basically a continuum, it's a progress. Okay. The first reform to the APMC Act began in 2003. We have had APMCs as organized, regulated markets in the country from ever since independence, and more robustly since 1960s when we launched the Green Revolution. And it is the APMC market that have dominated the entire agriculture market. Now, APMCs over a period of time needed change, and therefore the first model amendment to the APMC Act was prepared by Government of India and shared with all the states. And over a decade and a half, many states adopted many of the features. For example, while earlier we had APMCs only in the government sector, the new act said even the private sector should be allowed to set up APMCs. And second, that APMCs must also allow for online trade. Now, considering the new requirements in 2017, we prepared another model APLMC Act, this time taking into consideration that agriculture needs to diversify in sync with Honorable Prime Minister's vision of doubling farmers' income. We therefore needed to enable the farmers to have an efficient market system, not only for crops, but also for horticulture, dairy, etc. So the new APLMC Act is now talking about primarily allowing both public sector and private sector markets. More importantly, that there shall be a single trader license for the entire state, so that one trader is able to operate in any of the markets. Okay. But the most important was that we had also put a cap on the market fees that can be levied at 2% on the non-perishables and 1% on the perishables, and that the area outside of the APMC boundary wall shall be a free area, which only means that when the farmers get their produce to the APMCs, then the APMC laws apply. If they're not coming to the APMC, then the APMC laws need not apply. Now it is this particular free area which has been now covered under the new Act of the Government of India, and that is what is it that enables a direct trade. Okay. So in a sense today what government is saying is that just as in any other economic sector, let the farmers as entrepreneurs also have access to more than one trade channel. So it is good for the farmers because now they will have two trade channels. One is the APMCs, one is the direct trade. So when the direct trade is there, anybody, any trader of any nature, including an export house, including a purchaser, can go to the village, can go to the farm gate and purchase the commodities. So this will help the farmers to access two channels, and wherever he finds that he's getting a better price, he can go there. बिल्कुल, अगर आजादी यहाँ पर किसानों को मिलेगी, एक जम्मू कश्मीर का किसान अपनी जो फसल है वो कन्याकुमारी में बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, मंडी से बाहर बेच सकता है, जो अच्छे दाम उन्हें देगा उससे वो बेच सकता है। लेकिन दलवेज जी, जिस तरह से मौजूदा सीजन में हम यहाँ पर आज ही खबर हम पढ़ रहे हैं कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई है, यानी कि ये साफ ये बताती है कि सरकार एमएसपी खरीद जो एमएसपी है वो खत्म नहीं कर रही है, बल्कि करीब 20% अधिक खरीद हुई है। तो ये बात लगातार जो भ्रम फैलाई जा रही है कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, एमएसपी खत्म कर देगी, वो बात कहां से आई और किस तरह से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है? और एमएसपी यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ना कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इससे ज्यादा दाम पर भी किसान जो है वो कई जगहों पर बेच रहे हैं। या आप ठीक बोल रहे हैं, एमएसपी और मार्केट रिफॉर्म्स के साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। एमएसपी तो 1965 से लागू है इस देश में, वो पहले भी एपीएमसी एक्ट का अंग नहीं था, अब भी एपीएमसी का अंग नहीं है, और नया ट्रेड एक्ट जो बनाया गया है उसमें भी नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि एमएसपी कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी एक अलग गाइडलाइन है, और एमएसपी के तहत क्या दो मुद्दे हैं। एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम हर खरीफ और रबी के लिए अनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं। उसके साथ अगर बाजार में कुछ कमोडिटीज का प्राइसेस मार्केट से कम हो गया, मार्केट में एमएसपी से अगर गिर जाएगा तो गवर्नमेंट जाकर खरीद देती है। तो
किसानों को ये याद रखना चाहिए कि मार्केट रिफॉर्म्स एक है, मार्केट ओरिएंटेड एक्ट एक होता है, एमएसपी एक अलग मुद्दा ही है, दोनों में कोई ताल्लुकात नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार ने 2018 में एक नया स्कीम को ले आया है प्रोक्योरमेंट के लिए, क्योंकि सरकार का आप अगर यूनियन बजट 2018 देखेंगे, वहां माननीय फाइनेंस मंत्री जी ने यही कहा था, एमएसपी बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू स्ट्रेंथन प्रोक्योरमेंट अलॉन्ग विद एमएसपी। तो इस सरकार ने क्या किया है, एमएसपी घोषित करते हुए प्रोक्योरमेंट को भी मजबूत किया है। इस कारण से एक नया स्कीम को लाया है, उसका नाम है पीएम आशा। पहले क्या होता था, एफसीआई व्हीट और पैडी को खरीदते थे, मगर पल्सेस जो है, मिलेट्स जो है, ऑयल सीड्स है, इन कमोडिटीज के लिए उतना एक रोबस्ट सिस्टम नहीं था। तो पीएम आशा जब से आया है, इसके तहत सरकार ने ये घोषित किया है कि मिनिमम 25% ऑफ द प्रोडक्शन हम प्रोक्योर करेंगे। तो पीएम आशा शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि पल्सेस का प्रोक्योरमेंट बढ़ गया इस देश में, ऑयल सीड का प्रोक्योरमेंट बढ़ गया है, मिलेट्स को खरीदने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप खरीद लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे खरीदने के लिए, मगर आपको उस मिलेट्स को अपने पीडीएस में या वेलफेयर स्कीम्स में यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब है जो 23 कमोडिटीज जिनके लिए एमएसपी घोषित होता है, और इसके साथ जो कॉटन और शुगरकेन के लिए भी एक मिनिमम सपोर्ट एफएपी घोषित होता है, ये 25 कमोडिटीज का सिस्टम इस देश में है और हर साल इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल में गेहूं और धान का जो प्रोक्योरमेंट नॉर्मली 33% होता था, कोरोना के कारण सरकार ने लिबरलाइज करके लगभग 48% खरीद लिया है। इसका मतलब यही है कि कोई आशंका किसानों के मन में रखने का उचित नहीं है। एमएसपी है, एमएसपी की बेसिस पर प्रोक्योरमेंट भी कंटिन्यू होगा, और इसको तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बहुत बार कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है, कल जो मीटिंग था माननीय होम गृह मंत्री जी के पास उन्होंने भी कहा है। तो मैं समझता हूं ये जो मार्केट रिफॉर्म्स आवश्यक है, इसके साथ एमएसपी भी आवश्यक है, ये दोनों चलता ही रहेगा। जब मार्केट सुधार होगा, किसानों को स्पर्धा मूलक जो उनको और अच्छा रेट मिलेगा। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, सरकार का उद्देश्य है किसानों को अपने उपज पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा मिले। और कैसा मिलेगा, अगर कंपटीशन है मार्केट में, जरूर उनको एक अच्छा सा रेट मिलेगा। तो यही किसानों को याद रखना चाहिए। Okay. Hitesh, when you look at this particular farm unions demanding that, MSP should be made a legal right. Having said that, do you feel private traders, when they have to compulsorily pay the MSP, will they like to trade? And if they don't, either ways, how does it benefit farmers? देखिए, ऐसा है कि ये जो आशंकाएं हैं, इसमें खाली ये प्राइवेट प्लेयर्स को वो सस्ता खरीदेंगे और मंडियों के लिए जो किसानों की बात है, इसमें 2-3 बिंदु हैं, सिर्फ एक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसानों की सारी जो मांगे हैं उसमें कुछ तत्व नहीं होगा। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि 2-3 चीजें हैं जिसे सरलता से सरकार ठीक कर सकती है, और शायद वो अभी जो बात चल रही है सुधारों की, वो बिंदुओं की अगर हम बात करें तो एक तो मार्केट में अंदर मंडी का टैक्स और बाहर वो टैक्स का ना होना, ये एक विसंगति है जिसे दूर करने का एक मांग है किसानों की कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मंडी खत्म हो जाएंगी। ये ठीक बात है कि अगर एमएसपी देने वाला कोई बैठा है तो वो हमेशा बैठा रहे। दूसरी बात, एमएसपी से नीचे की खरीद कोई ना कर सके, इसका प्रावधान, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, और सरकार करती हुई भी लग रही है, क्योंकि अभी उसने संशोधनों की बात की है। तीसरी बात जो है कि एक बिल में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक है कि जो किसान की उपज खरीदेगा उसके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है। किसान जब आप बात करेंगे, मैंने 20-25 सक्सेस स्टोरीज पर बात की, जो मतलब सक्सेस स्टोरीज निकल कर आई उसमें से, जिन किसानों को इससे फायदा हुआ ये व्यवस्था हटने के बाद से, मगर उनका भी ये कहना था कि सिर्फ पैन कार्ड भाई साहब ये काफी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए जो हमसे खरीद कर रहा है। और चौथी बात, वो अभी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एसडीएम कोर्ट की बात की गई है कि एसडीएम कोर्ट, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, और
खेती किसानी का मामला है, किसान के हित सर्वोपरि हैं। इसमें कृषि न्यायालय जैसी अगर कोई व्यवस्था हो सकती है कि उसके सौदे का समय पर भुगतान हो, ठीक भुगतान हो, एमएसपी से नीचे ना हो, ये 2-3 बिंदु देखकर कृषि न्यायालय की व्यवस्था, ये जो बिंदु हैं ये तो समझ में आती है बात, मगर एक अच्छी चीज जो किसानों को एम्पावर करने वाली है, बिल वापस लो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। आपको पॉइंटेड बात करनी पड़ेगी, और जो समझदार किसान हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मेरे पास से एक कमरे में बैठ के एनालिसिस निकला हो। ये इसमें हरियाणा के किसान, वेस्ट यूपी के किसान और दक्षिण भारत तक के किसानों से जो बात हुई उसमें उनकी ये जो सवाल हैं ये निकल कर आए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि इसे सारा सिर्फ इसे कृषि बिल सुधार बताया जा रहा है, दूसरा सिर्फ किसानों का मुद्दा बताया जा रहा है। मेरा दोनों पर एक ऑब्जर्वेशन है, एक मेरा मत है कि ये देश की 138 करोड़ की जो आबादी है उसको प्रभावित करने वाला कानून है, और इसके बाद ये जो कानून है इससे जो 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, 32 करोड़ टन फल सब्जी होती है, 19 करोड़ टन के आसपास जो दूध होता है, ये करीब जो 12,000 अरब रुपए का जो लेन देन है बाजार का, ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा जो लेन देन है उसको प्रभावित करने वाला है। और इसका अफेक्टेड सिर्फ किसान नहीं है, आप और हम जो घर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं, घर में चटनी बनाने का सामान से लेकर जो सब्जी होती है, दाल तिलहन का तेल होता है, वो सारी चीजें अफेक्टेड सभी लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नैरेटिव को खाली सिर्फ एक भूगोल तक समेटना, सिर्फ किसान तक समेटना, ये देश की दृष्टि से भी सही नहीं है। अगर आप उपज के मौसम में आप दिल्ली से अगर मथुरा अलीगढ़ की तरफ निकल जाएं तो आपको ध्यान होगा कि आलू के सीजन में जब खरीद नहीं होती थी तो सड़क के किनारे आलू सड़ते थे, लोग एक बोरा भी नहीं भरना उसे बुग्गी में भरकर पलट जाते थे, क्योंकि प्रोड्यूस इतना हो गया, खरीदने वाला कोई नहीं है। अब जब सब चीजें जुड़ेंगी तो आपके पास एक तो खरीद की लिमिट नहीं है, आप रख सकते हैं, और जो खरीदेगा वो सामान को सहेजने के लिए, किसान के पास उपजाने के लिए खेत है, उसको सहेजने के लिए गोदाम उसके पास नहीं है, वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। तो कोल्ड स्टोरेज वाला और एक किसान, दोनों के बीच में तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है जब खेती के में प्रतिस्पर्धा थी, अब खरीदारी में प्रतिस्पर्धा होगी, तो ये कोल्ड स्टोरेज की चेन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये सब जब आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी जाने वाली है खेतों तक, किसानों तक, और उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा गुणवत्तापूर्ण विकल्प भी मिलेंगे, ये भी मेरा मानना है। Okay, Mr. Dalwai, when you look at this particular issue, the way Hitesh put it, where do you feel, the farmer gains to benefit, outrightly a 6.5% benefit is what the farmer looks at, 2.5% commission, 4% coming to the mandis. That the farmer outrightly benefits, when this particular new agri law comes into play. Having said that, what is that, one point of contention where, at least when you look at a straight 6.5% advantage, why is the farmer or why are farmers not ready to buy that particular argument? अच्छा, ये तो हमको समझाना पड़ेगा किसानों को। जैसे अभी कहा गया है, एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि खाली धान या पैडी नहीं है या व्हीट नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब है क्रॉप सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर। हमारा देश में क्लाइमेटिकली इतना डाइवर्सिफिकेशन है, हमारे देश में हमारा माटी जो है, सॉइल जो है, इतना डाइवर्सिफाई है। अगर इसको हम यूटिलाइज करना चाहेंगे तो हमको डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1960s से हमारा लक्ष्य यही था, फूड सिक्योरिटी, मगर अब देश का फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सरप्लस देश बन गया है। तो हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि कैसे कृषि में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे और किसानों का आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को अब हम एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज मान रहे हैं। अगर ये करना है तो हमको अलग अलग प्रकार के उत्पादन को इंसेंटिवाइज करने के लिए मार्केट पर, एग्री लॉजिस्टिक्स पर और प्रोसेसिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये जो नया कानून लाया गया है, ये नया कानून का
एक ही लक्ष्य है कि हम अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। अगर मान लीजिए हॉर्टिकल्चर के लिए ऐसा तो एमएसपी नहीं है ना, एमएसपी हो भी नहीं सकता है क्योंकि वो तो पेरिशेबल कमोडिटीज है। पेरिशेबल कमोडिटीज को कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं अगर फ्रीडम नहीं है? एक नेशन एक मार्केट का मतलब अगर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो किसान को कैसा फायदा होगा? पिछले 15 साल में हॉर्टिकल्चर में एरिया बढ़ता ही जा रहा है। पहले जो 15 मिलियन हेक्टेयर था हॉर्टिकल्चर में इस देश में, अब बढ़कर 26 मिलियन हेक्टेयर हुआ है। और एक ग्रोथ रेट जो हॉर्टिकल्चर में है हमारा क्रॉप सेगमेंट से ही ज्यादा है। उसी के साथ डेयरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री भी बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं हमारे ओपिनियन मेकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इकोनॉमिस्ट और फार्मर्स लीडर को यही समझना पड़ेगा कि कृषि का मतलब अब बदल गया है और हमारा कृषि का मैंडेट अब है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सेकंड क्रिएटिंग हायर इनकम्स। अगर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा और देश का एक जीडीपी जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है 2026 तक हमारा इकोनॉमी साइज को $5 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे, संभव है। तो ये जो नया कानून है ये तो मार्केट रिफॉर्म्स किसान के हित में है और उसके साथ एमएसपी तो रहेगा ही। और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के लिए एमएसपी के जैसे एक एमआई स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसका मतलब है अगर मान लीजिए किसी कारण से ये वेजिटेबल या फ्रूट्स का दाम बहुत गिर जाएगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उनको सपोर्ट देते उसको खरीदने के लिए, जैसे आलू का खरीदारी होती है, प्याज का होती है। मगर इन सब के इस जो एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक नया स्कीम शुरू किया है। वो क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्थापित किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से बात होती थी, पहले बात होती थी कि आप अपनी जो उपज है, जो अपनी फसल है, उसको दुगनी की जाए। या इस बार इस सरकार की तरफ से ये बात हुई कि फसल तो दोगुनी होगी, उत्पादन दुगनी होगी, लेकिन किस तरह से किसान की आमदनी को दुगना किया जाए। और सरकार जिस तरह से बता रहे थे दलवी साहब की 1 लाख करोड़ का खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर कर रही है। हमारे साथ पीसी बोस, सीनियर एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीसी बोस जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सरकार मंडियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, एक तकनीक आधारित बना रही है, मंडियां मजबूत कर रही है, इनाम है, तमाम तरह की ऐसी नई रिफॉर्म्स को यहां पर लाया जा रहा है और इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो गतिरोध है वो जारी है। किस तरह से आप देखते हैं कि तमाम भ्रांतियों को दूर कर विश्वास बहाली को बढ़ाते हुए सच्चाई उनके सामने पेश की जा सकती है? Mr. Bodh, I think the audio is muted, so you'll have to unmute yourself before you speak. Yeah, I can hear you well, clear. जी, एक इन दिनों जो देखने में बात आ रही है, कल जो भारत बंद के दौरान, भारत बंद सक्सेसफुल है या ना सक्सेसफुल नहीं है, इसके ये हमारा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। पर इस बंद के दौरान जिन किसान नेताओं को हमने बोलते हुए देखा, जिन एक्सपीरियंस विद किसानों ने समय समय पर अच्छे मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त किए इन बिलों को लेकर, और उनकी इन बिलों को लेकर जो भ्रांतियां कहो या शक शुबा कहो, उनके बारे में जो उन्होंने विचार दिए, उन सब से एक चीज जो हमें बार बार देखने को मिल रही है, जो मैं देख रहा हूँ, और इन सभी अब तक जो डिस्कशन डिबेट होता रहा, उससे ये पता चलता है, हालांकि कुछ बातें जो हैं ऐसी हैं जो न किसानों को बहुत स्पष्ट है, न किसान नेताओं को स्पष्ट है, पर
उनके जो डर का जो आधार है इन बिलों को लेकर, वो आधार एक भारत के इस हमारे देश के इस माहौल की वजह से हो रही हो सकती है, वो शक जो है। पर वो ये चीज नहीं देखते हैं कि ये जो फार्म बिल्स जो लाए गए हैं, ये किसी हम एक प्रदेश या किसी हमारे अकेले इस भारत के जो सोच के का परिणाम नहीं है। ये विश्व भर में किसानों की स्थिति सुधारने में जो कोशिशें की गई हैं, उनके अनुभवों पर आधारित है। चाहे वो मार्केटिंग रिफॉर्म, मार्केटिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात हो, अब जो है एपीएमसी जिसकी खामियां बार बार उजागरित होती रही हैं, उनको प्राइवेट मंडी की कंपटीशन से उनको कम्पिटिटिव बनाने की कोशिश है। इसके पीछे जो अनुभव है वो, और उसी तरह से जो बहुत बड़ा जो कदम जो उठाया गया है कॉन्टैक्ट फार्मिंग को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये भी कोई ऐसी चीज नहीं जो कि अकेले भारत में एक बिल्कुल नई चीज की गई हो, बल्कि जहां भी ऐसी समस्या आई, जहां भी किसानों को जो है इनेबलिंग कंडीशन देने की बात आई, वहां पर ऐसे ही कदमों द्वारा किसानों की स्थिति सुधारी गई है। इन सब को देखते हुए हम ये कहेंगे इन सब फार्म बिल्स के इन कदमों के जरिए किसानों को अब एक ऐसी एक नेचुरल इकोलॉजी में जो है खेती बाड़ी करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें वो किसी भी दूसरे पर डिपेंडेंट किए बगैर जो वास्तविक जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जितना भी पैदा करेंगे, चाहे मैक्सिमम पैदा करते हैं, चाहे मिडिल लेवल में पैदा करते हैं, उसमें ही उनको काफी आमदनी हो। फिर आमदनी दुगनी होने की बात नहीं है। ऐसी मार्केट स्थितियों में आमदनी तिगनी हो सकती है, आमदनी बहुत बढ़ सकती है। तब आमदनी पर कोई ये कहना कि अब हमको कम से कम एमएसपी लेवल पर ही निश्चित करना, इवन वो भी उसका भी कोई अभिप्राय नहीं है, तात्पर्य कोई मीनिंगफुल उसका रीजन नहीं दिखता। क्योंकि जब आप मार्केट कंडीशंस को रियली इफेक्टिव बना देंगे, तब किसान कितना कमा पाएंगे, किसान को कितनी इस आमदनी बढ़ेगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये मेरा विचार है। बिल्कुल। और तमाम तरह की योजनाएं जो सरकार की ओर से चलाई गई हैं, देश भर में इसकी चर्चा होती है लगातार। हम आपको ये बता दें कि इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच में भी किसान के खातों में जल्द पहुंचेगी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हमारे साथ इस वक्त हितेश शंकर जी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, तमाम भ्रांतियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक और मुद्दा है जो किसान बड़ा बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं, वो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचा रहा है ये किसान कानून। यहाँ पर हम कृषि क्षेत्रों में निवेश आने की बात कर रहे हैं, छोटे क्षेत्रों में निवेश आने की बात कर रहे हैं, जहां पर किसान अपना उगाता है वहीं पे उसका भंडारण होगा, वहीं पे छोटे छोटे आपके वेयर हाउसेस खुलेंगे। ऐसे में छोटे किसानों को फायदा नहीं होगा। क्या वो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से मोलभाव नहीं कर पाएंगे? कॉर्पोरेट सेक्टर्स उन पर हावी हो जाएंगे? इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक नैरेटिव के तौर पर स्थापित कर दी गई कि कॉर्पोरेट कोई ऐसी चीज है जिसे गाली दी जा सकती है। जी, अंबानी अडानी एक नैरेटिव चलाया गया। मैं आपका एक ट्वीट की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का 27 जुलाई 2016 का संभवतः ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो अंबानी जी को यहाँ पंजाब में निवेश के लिए ला रहे थे जी, 3000 करोड़ का निवेश था, मगर अकालियों ने आने नहीं दिया। तो अंबानी का आना और वो उसे सिर्फ एक सरकार के साथ चिपकाया जाना, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, आप जब यही कंपनियां, जब रिलायंस का जियो आता है और वो पूरा परिदृश्य ऐसे बदल देता है कि एक गरीब आदमी भी 2 GB डेटा कंज्यूम कर सकता है, 21 रुपए में उसे 2 GB डेटा मिलता है। अच्छा। उसी देश में जिसमें एक इनकमिंग कॉल की कीमत 36 रुपए हुआ करती थी और 4G वाली स्पीड नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट को गाली देने का चलन ये बंद करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा सभी लोगों के लिए मौके खुलती है। कौन सा कॉर्पोरेट अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसका जो हमारे पास प्रतिस्पर्धा आयोग है, इस देश में नीति नियामक संस्थाएं हैं, इस देश में न्यायालय हैं,
और कंपनी लॉ बोर्ड के अंतर्गत ये काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये अवैध काम करने वाले माफिया हैं। ये माइंडसेट से जब तक नहीं निकलेंगे, मुझे लगता है ये वामपंथी नैरेटिव है जो हमेशा किसानों की बात और बाकी सबकी बात करता है, मजदूरों की, मगर उनके नाम पर दलाली करता हुआ दिखाई देता है। और उसको पोसने वाली एक राजनीति की कोटरी भी है। जैसे मैं अगर कुछ और रेफरेंसेस की बात करता हूं कि आप अभी एक अगुवाई कर रहे हैं इसकी शरद पवार महाराष्ट्र में, मगर शरद पवार इस देश में सबसे लंबे समय तक कृषि मंत्री रहे हैं और 23 मई से 14 से लेकर 26 मई 2004 से लेकर 14 तक उनका एक कार्यकाल रहा है। उसके दौरान जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने जो कृषि क्षेत्र की जो विकास दर थी वो 4% उनके हाथ में सौंपी थी। आज आप खेती किसानी की बात कर रहे हैं, मगर उनके समय में -0.2 चली गई थी। आप क्या कहेंगे? जो किसान को कुएं में ढकेल दे वो किसानों के हित की बात करेगा क्या? क्योंकि मैं बिल्कुल आंकड़ों की बात कर रहा हूं। उस समय पर देश में 1,71,135 किसानों ने आत्महत्या की थी। और शरद पवार साहब ने जो मुख्यमंत्री थे उन मुख्यमंत्रियों को लिखा कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं, तो एक पत्र लिखा उन्होंने 11 अगस्त 2010 को, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कृषि क्षेत्र को बढ़ाना है तो निजी भागीदारी भी बढ़ानी होगी, टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। ये उन्होंने खुद कहा था। तो मुझे लगता है किसान को ठगने का काम जो किसान के पैरोकार बन के आते हैं उन लोगों ने ज्यादा ये किया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल इन एग्रीकल्चर शुड बी एक्सप्लोर्ड ऑन ए वाइडर एंड लार्जर स्केल। ये मैं बिजनेस लाइन जो हिंदू का है उसका मैं 27 दिसंबर 2012 की खबर बता रहा हूं। तो मतलब आपको करना था ये चीज, मगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। और अगर किसी और ने कर दिया तो आपको अपनी राजनीति की जमीन सरकते हुए लगती है। तो इसलिए बिचौलियों के साथ मिलकर पॉलिटिकल मोर्चा खोलना और उसे बताना कि नहीं ये सारे किसान हैं। आज के अखबार की एक खबर बता रहा हूं, एक प्रमुख हिंदी दैनिक है, उसकी खबर है कि उत्पात मचाने के लिए सिर्फ एक साफा और एक गमछा लेकर और सिर पर टोपी लगाकर 95 रुपए में लोग किसान बनकर यूपी गेट से इधर आते हैं और उपद्रव कर रहे हैं। आज के अखबार की बिल्कुल। तो किस तरह से हम जानते हैं कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा मंडी शुल्क लगा रखा है पंजाब में देश में, और मंडी फीस वसूलने के लिए और ये बिचौलियों के जो कमीशन एजेंट्स है, क्या वो इस पूरे जो इतना ज्यादा आक्रामक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो उसके पीछे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। नाउ मिस्टर Dalwai, when you look at this particular issue, is there a way out when you look at this particular logjam that we are seeing? 5 rounds of talk that have taken place, but is there a way out in which this set of reforms can be implemented, which would give farmers more bargaining power, considering that we are living in this tug of war where we are looking at this is going to benefit the corporate sector or not. Let's leave that aside, but how does the farmer benefit, or how do we implement these set of reforms which would give the farmers more bargaining power? Thank you very much. One thing all of us agree that since 1991, when India adopted economic liberalization and brought in a series of reforms in various sectors, Indian GDP has grown robustly. Indian economy is much stronger today than what it was prior to 1991. It only goes to show that we need free market, we need competition. Agriculture is a very important sector in India. It may be contributing only 15% to the GDP, but 48% of the people depend on agriculture, which only means to say we need to increase the size of the GVA from agriculture. And agriculture has a potential to increase by up to 20%. Now, we should also know that any free market, we need the players, the stakeholders to be strong. And keeping that particular thing in mind, what government has done is promoting farmer producers organizations so that the farmers can mobilize themselves and increase the bargaining power. Second, in order to increase their financial muscles, it has increased the credit based on interest subvention. Today at the production stage, we are taking the target of to rupees 15 lakh crore, and post harvest when the sale happens,
government is now strengthening electronic negotiable warehouse receipt system so that the farmers can avail of credit at interest subvention from the banks and keep their commodities in the godowns and sell when the markets improve. So what we see now today is that government is tackling the farmers' issues from different angles. It is strengthening the bargaining power, strengthening the financial muscles, and also strengthening the agri-logistics in the country so that the farmers will be able to play in the market with strength. And therefore, there is no fear that they will be exploited by the market elements, including the the commission agents or the traders or the bulk purchasers. So we can be rest assured that government is aware of how to strengthen the bargaining power, the financial muscles of the farmers, and they will be able to play an equal role. And we are, of course, going to train them, educate them, and then when the farmer producers organizations are built, now we have designed a customized training program for everybody. We are appointing what are called resource institutes who can help the farmers to come together. So there is a lot that is being done, including, for example, setting up a credit guarantee so that the farmers come forward to fund the farmers on the loans. So thank you very much. Is that? Well, we still need you to be around with us for a little more time. We've got around 11 minutes left on this show. But let me come to Mr. PC Bodh. Looking at how, this particular, bills has been spoken about more as, small traders were looting farmers before. Now it's the corporates that will come into play and loot the farmers before. At the end of the day, what does the farmer gain? The farmer tends to lose either ways. ये जो है एक बहुत ही निराधार बात है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इम्प्लीमेंट होगा ये बिल, इस बिल के बेसिस पर जो है ज़्यादा फार्मर्स जो हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ पार्टनरशिप करके अपनी फार्मिंग, अपनी खेती बाड़ी आगे चलाएंगे, तो उन्हें जो है एक तरह से कॉर्पोरेट लूट और कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो डिटेल्स अब तक जो वर्कआउट किए गए हैं हमारे अब तक के जो है अनुभव के आधार पर, उसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि कॉर्पोरेट हाउसेस क्या चाहेंगे फार्मर से। उनको सीधे तौर पर सिर्फ खेत चाहिए, और खेत किन लोगों के खेत, सीमांत और मार्जिनल फार्मर्स के खेत, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के, अपने कैपिटल के थ्रू, अपने जो है टेक्नोलॉजी खरीदने की एबिलिटी के थ्रू, बल्कि खेती बाड़ी के सभी जो आयाम हैं उन सब में जो उनकी क्षमता है, उनकी क्षमता अपनी उन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, सिर्फ उनके खेत के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, कि किसानों की सभी तरह की कमियों का एक साथ जो है निवारण हो जाएगा, और किसानों की का जो है वेलफेयर जो दो लेवल पे हुआ है। एक, अब जो है वो अपने पहले के जो उपज और उपज की सीमा, उपज की जो लेवल और जिस तरह की उपज वो करते थे, उससे कई गुना क्वालिटी में और टेक्नोलॉजी में बढ़िया उपज प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस के पास मंडी के पहुंच बिजनेस कमर्शियल एबिलिटी है, तो उसके द्वारा वो किसानों के लिए ऐसी कीमतें निश्चित कर पाएंगे जो किसान सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये कहना कि कॉर्पोरेट हाउसेस उनको लूटेंगे, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोनों पार्टीज में उस कॉन्ट्रैक्ट से भागने की स्थिति तभी आती जब उनका ध्येय जो है प्राप्त ना हो, प्राप्त ना हो। अब क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट हाउसेस खूब प्रोडक्शन करके अपने जो जरूरत के माल उस खेत से पैदा कर पाएंगे, तो वो कमा रहे होंगे, और किसानों को बहुत बढ़िया दाम और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन संभव हो रहा है। उन दोनों में से किसी को भी
इस कॉन्ट्रैक्ट से भागने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होती, प्रेरणा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया कि किसान जो है बिना किसी यूनिलैटरली अपने एक तरफा जो है उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकता है, जबकि कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रावधान नहीं है। अब इससे बढ़िया स्थिति कॉन्ट्रैक्ट हाउसेस कॉर्पोरेट हाउसेस को बाउंड करने का और किसानों को फायदा दिलाने का की हो ही नहीं सकती है। तो इसके बारे में सब तरह के डर जो है वो सिर्फ काल्पनिक हैं और निराधार हैं। मैं ये मेरी समझ है। बिल्कुल, और किसानों को ये समझने की जरूरत है, ये जो कानून है उनके हित में है। हमारे साथ हितेश जी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा संक्षिप्त में, लगातार सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि वो हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है, हर आशंका का समाधान करने के लिए तैयार है, लिखित आश्वासन देने को तैयार है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं जो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए, एक तरह का समाधान अगर आप यहाँ पर देना चाहें कि क्या कुछ हो सकता है उनके बीच की सुलह का कोई फॉर्मूला? जी, ऐसा है कि अभी जो लोग अड़े हुए हैं और उनका जो बर्ताव रहा है और जिस तरीके की नारेबाजी लगी है, ये आशंका बार बार बलवती हुई है कि वास्तव में किसान हैं या कुछ और भारत की एकता को तोड़ने वाली शक्तियां तो इकट्ठी नहीं हो रही। जो सूबे को तोड़ने की बात और भारत माता की जय के नारे से इनकार और मतलब जो देश की एकता वाले नारे हैं उसके खिलाफ इस देश का किसान, जो देश हमेशा बोलता रहा जय जवान जय किसान, किसान का बर्ताव ऐसा नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों से बात हो रही है उसके अलावा भी जो वास्तविक किसान हैं, एक कैलेंडर बनना चाहिए, एक चार्ट बनना चाहिए। और इसमें बिहार के किसान कहाँ हैं, इसमें आंध्र के किसान कहाँ हैं, क्या सिर्फ इसमें कनाडा वाले किसान उनकी बात सुनी जाएगी? ये जो है ये नैरेटिव पूरे देश में सोशल मीडिया वगैरह अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। एक ऐसा सूबा हितेश जी, मुझे लग रहा है आपका म्यूट दब गया, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ये संभव नहीं है कि सिर्फ एक तबका पूरे डायलॉग को हाईजैक करने की कोशिश करे। बिल्कुल। इसलिए जो भारत इतना बड़ा देश है, आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह के किसान संगठन आप देखेंगे, 500 किसान संगठन है। आपको सबको बुलाकर एक कैलेंडर के साथ बारी बारी से चक्रीय बैठक होनी चाहिए, एक के बाद एक। जो आशंकाएं हैं निश्चित ही उनका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने एक बार में ही बहुत अच्छा बना दिया होगा ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स भी खराब मंशा से बनाएंगे ऐसा नहीं है। मगर सरकार की नीयत अच्छी है, उसमें और क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो सबका साथ सबका विकास वाली बात वास्तव में अगर सरकार करना चाहती है तो इस वार्ता को बहुपक्षीय बनाना पड़ेगा और उसमें पूरे भारत का ट्रू रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, असली प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Mr. Bodh, when you look at this particular issue, what do you see is a middle ground that one can take? Hitesh talked about Sabka Saath, Sabka Vikas. It's also getting the farmers ka vishwas, especially when it comes to this particular agri law. I really don't have much to say on this, but one thing that can be really said without any hesitation is, no problem can be solved without taking a flexible view. So maybe on the part of our farmers and farmers organizations, there's a need for being little considerate about finding out the reality that whether these bills are really going to be so impractical as they think, or there's something beyond that. So on the part of farmers and farmers organization, there's a need for being a little flexible and be considerate of what is being explained, what is being told by the government. Because at the end of the day, lots of thinking has gone into the entire process of entire process, and there's a need for, and there's a large scope for bridging the gap between what is being perceived by the farmers organizations, and what the government has to present before them. Well, we are running short of time. We appreciate all three gentlemen who've joined us on this delicate tightrope topic that
We thank all the three guests who have joined us this afternoon, especially on this delicate tightrope walking issue when it comes to the farmers' agitation that's been into day 14. We especially thank Hitesh, PC Bodh, also Dalwai, who had joined us a little while ago. All three gentlemen, thank you, appreciate you joining us. Remember, it's a tough nut to crack. Why would I say that? Because finding a meeting point, especially on these farm laws, is difficult. Reaching out, finding a middle path, or finding out sensitively what's the best way ahead could be one of the most easiest ways to look when it comes to handling this particular farmers' issues. You know, this is why it's a delicate balancing act, because the responsibility is on either side of the fences. The responsibility is with the farmers, because they need to come to the talking table to talk out those points that are fears in the mind to help get over this particular issue. सरकार ने साफ कर दिया है कि वो हर तरह की बातचीत के लिए, हर व्यवहारिक हल के लिए तैयार है। आप किसानों को तय करना है कि उन्हें अपना हित समझना है या भ्रम में ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आत्मनिर्भर भारत के इस बेहद खास संस्करण के साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। फिलहाल मुझे नलिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाय।